اچھا پروفیسر صاحب، بل کوئی ستارے آپ کو کوئی ملک میں نئے انتخابات یا تبدیلی نظر آپ کو آتی ہے؟ یہ جو اس مہینے میں جس طرح ستارے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ اگلے مہینے میں معاملہ اور تیز ہونے والے ہیں۔ تو اگر عمران خان، میں چودھری صاحب سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا، میرے اخلاف وہ یہ، عمران خان کے ستارے خود اس کے مخالف ہونے والے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرنی ہے جنوری میں جا کر۔ یہ جو رکاوٹ پلانٹ ایک دیوار بن کر سامنے آ رہے ہیں، مطلب کون سا پلانٹ موو ہو جائے گا جس کی وجہ سے میں اس طرف آ رہا ہوں، یہ وہاں مشتری ہوگا ان کے چوتھے خانے میں، رکاوٹ والے خانے میں، چوتھا خانہ رکاوٹ والا خانہ ہوتا ہے، وہاں مشتری ہوگا، وہاں زول ہوگا، وہاں پلوٹو ہوگا، وہاں عطارد ہوگا۔ 4 پلانٹ ان کا کنجنکشن ہے، ملاپ ہے، کران ہے۔ تو میں چودھری صاحب سے یہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ انتخاب ہوں یا نہ ہو، یہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار آنے والی ہے، بہت بڑی دیوار۔ عمران خان کو اس دیوار کو پار کرنا ہوگا۔ اس دیوار کی جو ہے صورتحال اس مہینے اندر ہی اندر بن جائے گی، اور یہ جو وقتی طور پر مولانا صاحب کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، جیسے ستارے بتا رہے ہیں، الجھن میں اضافہ ہوگا، ٹینشن آئے گی، کھچاؤ تناؤ پیدا ہو جائے گا، ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو پلان لگ رہے ہیں، یہ ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اکتوبر کے آخری ہفتے میں، جس کا آگے چل کر نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پروفیسر صاحب سے ڈس ایگری نہیں کر رہا۔ ان کے ستارے بول رہے ہیں، میں سیاسی تجزیہ کرتا ہوں، میں سیاسی حالات دیکھتا ہوں اور ان کا تجزیہ کرتا ہوں۔ مجھے ستاروں سے کوئی غرض نہیں، جس طرح ان کو غرض نہیں ہے سیاسی۔ دیکھیں، سیدھی بات ہے کہ عمران خان پورے پاکستان میں، وہ علاقائی جماعتیں ہوں، وہ قومی جماعتیں ہوں، وہ نیشنل پارٹیز ہوں، وہ صوبائی حلقہ ہو، قومی حلقہ ہو، کوئی صوبہ ہو، عمران خان ان کی ریپلیسمنٹ بن کے آیا۔ سب کی ریپلیسمنٹ ایک آدمی۔ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی، آج اپوزیشن میں تب بھی، سارے اکٹھے ہیں ایک کے مقابلے میں۔ اچھا، وہ سب کی ریپلیسمنٹ ہے، لیکن عمران خان کی ریپلیسمنٹ، اس کا متبادل ابھی موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر 2 صورتیں ہیں، اگر تو بات انتخاب میں جائے گی تو وہ جیتے گا، اگر یہ انتشار پھیلا دیتے ہیں تو ہمیشہ انتشار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عمران خان کی ریپلیسمنٹ نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے ہی نہیں۔ اس کو لوگ شف کرتے ہیں نا، پشتوں کا محاورہ، شف نہ کرو، شفتالو بولو۔ میں سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ اگر جمہوریت بچے گی تو انتخاب ہوگا تو عمران خان ہے، نہیں ہوگا تو فوجی حکومت ہے۔ اب کیونکہ ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے اس کی، بھٹو کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ، نہیں، میں بھٹو کی ریپلیسمنٹ ابھی نہیں تھی۔ بھٹو کی ریپلیسمنٹ اگر بن گئی ہوتی تو ضیاء اتنا لمبا نہیں آتا ہی نہیں۔ اب اس سے زیادہ خراب صورتحال ہے۔ اب سرے سے پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کے گری پڑی ہیں۔ اس وقت تو اچھی خاصی پھر بھی تھے، اثر خان تھے، مفتی محمود تھے، سید مودودی تھے، کیا کیا بڑے لوگ تھے۔ اب تو جناب کہہ تو رجال پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہے، کبھی سنبھلے گا ہی نہیں۔ جی پروفیسر صاحب، میں نے آپ کی چودھری صاحب کی سیاسی رائے سن لی۔ بات پھر وہی آتی ہے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، کہ میری رائے صرف سیاحوں کی رائے ہے۔ سیاحوں کی رائے جو ہے وہ ہمیں، جیسے چودھری صاحب نے بھی سارا انالیسس کیا ہے، ستارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، اب آپ مجھے اجازت ہے یہ کہنے کی، اللہ مجھے غلط ثابت کرے، اللہ مجھے غلط ثابت کرے، 23 مارچ کے بعد پاکستان کی پوزیشن بہت خراب ہونے والی ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ہمارے، ہاں، یہ جو ٹرموائل ہے، یہ اپنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا سسٹم ہے، یہ سیل ہے نا جی، سیل چلتا جا رہا ہے، اس کو کوئی روکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف 29 سال کے بعد زول آنے والے ہیں۔
23 मार्च को आने वाला है, 2.5 साल रहेगा। अच्छा, इंडिया की इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंडिया का भी यही सूरत हाल होगी कि उस पर बहुत बुरे असरात मरतब होंगे। उसको जैसे कि इंडिया का बुरा जदी माना जाता है, तो इंडिया में माशी तौर पर बहुत बड़ा बुरान आएगा और ये 2.5 साल तक रहेगा। तो जिस तरह हमारे हालात ख़राब हैं, इंडिया के भी फिर शदीद हालात। ज़ाहिर है इंडिया के हालात ख़राब हैं। वो इस आसमान के नीचे नहीं है। इंडिया भी इसी आसमान के तो नीचे फिर है। इसका मतलब है कि इस चीज़ का ताल्लुक जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात या हालात ख़राब जो होने लड़ाई, वो भी एक वजह। हालात जब इस तरह ख़राब हो रहे हैं तो इसी वजह से मैंने, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, मैंने 1-2 दफ़ा आपसे ये अर्ज़ किया था कि ये क्लैश का ख़तरा है। इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया था कि हालात इतने इस तरफ जा रहे हैं। अब मैं एज पाकिस्तानी, मुझे इतना फ़िक्र है कि 23 मार्च के बाद जब ज़ोल सितारा पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 साल के लिए आ जाएगा तो क्या बनेगा। तारिक चौधरी साहब, और हालात पहले जो हैं वो अपना इमरान खान के चौथे खाले में पहले एक दीवार बनी पड़ी है। मैं आज से 6 या 7 की बात है, 2006 या 7 की, मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि मैं इमरान खान के लिए जा रहा हूँ काम करने के लिए। इन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान जो है उसकी एक प्रॉब्लम है, एक तो वो पावर में नहीं आएगा क्योंकि उसकी ये मुखालफत, लेकिन अगर वो पावर में आ सकता है क्योंकि ये पता नहीं चौथा घर है और उसका ये तो उन्होंने कहा अगर आ जाए तो उसकी जो है ना यानी डेथ हो जाती है पावर में। मैंने कहा जी इससे तो मैं कर सकता हूँ कि वो हो सकता है हो जाए, तो वैसे भी तो बंदा फौत हो जाता है, मर जाता है। मैंने कहा जी मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इमरान खान पावर में आ जाएगा। इसी तरह मैं ये कहता हूँ, अब ये जो यानी उसकी मुखालफत तो है, उसके सामने दीवार है। सवाल ये है कि उसके अंदर तो अभी भी इतनी एनर्जी है कि वो दीवार फलांग के चला जाए। बाकी इस उम्र में तो कोई दीवार नहीं फलांग सकता। वो अपनी जो है ना उसका मुकाबला कर सकता है, उसके अंदर एनर्जी भी है और उसकी रवायत भी है। लिहाजा इस वजह से मैं कहता हूँ उसकी रिप्लेसमेंट नहीं। लेकिन ये ग्लोबल टेंशन है, ये लोग मुकामी नहीं है। लिहाजा ग्लोबल टेंशन में आप देखें अगर, तो इस वक्त उसकी वजह सिंपल है कि जनाब बहुत बड़ा जहाज है, उसकी रफ्तार भी गैर मामूली है और कप्तान है ही नहीं। कप्तान इतने वीक हैं। आज अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में एक स्टेट्समैन का नाम मुझे बता दें, एक पूरी दुनिया में एक फलसफी का नाम मुझे बता दें, पूरी दुनिया में एक चर्चिल, एक जिना, एक इकबाल, एक रसल, एक का नाम मुझे बता दें। ओ भाई है ही नहीं। ठीक हो गया, तो उसमें ये टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसी पे आप जी कहिए। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं सर ये चौधरी साहब से फिर यही कहूँगा कि हम 2 मुख्तलिफ ऐनकें लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है। मैं अपनी ऐनक से सियारे देख रहा हूँ, ये अपनी ऐनक से दुनिया के हालात देख, दुनिया के हालात सियासी रंग में सियासी तजिया करते जा रहे हैं। मोहब्बत चौधरी साहब 23 मार्च के बाद वैक्यूम है या नहीं है, ये बात ज़हन में रख लें। अल्लाह मुझे गलत साबित करे कि ज़ोल के आने से पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें यास नाउमीदी का अंसर दाखिल हो जाएगा। ठीक मज़ीद अल्लाह से न करे, अल्लाह से न करे। बसीत इंसान के मैं पाकिस्तान से लव करता हूँ। ठीक हो गया। आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, मैं क्योंकि वक्त भी हमारे प्रोग्राम का ज़्यादा नहीं रहा, कि उनको उनके प्रॉब्लम है, सब कुछ है, जो उनकी सेहत का खाना है, उनकी जो ज़िंदगी है, वो क्या आपको बताते हैं? हाँ जी, अगर प्लानिट अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें हिफाजत में रखे, क्योंकि पाकिस्तान में एक सियासत में इख्तलाफ तो आते रहते हैं, लेकिन वो 19 जब जून प्लानिट की बात होती है तो 19 जून के हिसाब से आप 19 जून हालात जो है ना उनको एहतियात करनी चाहिए। मौलाना मोहतरम मौलाना को एहतियात करनी चाहिए और बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए अपने हालात पर कि मैं किधर जा रहा हूँ। और जैसे मौलाना साहब का स्टाइल है, मौलाना साहब की तदबीरें सामने आती हैं, जिस तरह वो उनका स्टाइल है मौलाना साहब का, ये नहीं हो सकता उनको पता ना हो कि ये मैं किधर जा रहा हूँ। हालात उनके मौलाना साहब के ठीक नहीं है। नहीं अभी और ये जो ज़ोल और मरीख का क्रॉस होने वाला है 27 तारीख को, चौधरी साहब आपकी तवज्जो, ज़ोल
और मरीख का क्रॉस नंबर 1 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक ये जो असरात हैं। नंबर 2, सूरज और यूरेनस का मुकाबला, एक ही दिन में ये दोनों प्लैनेट लगे हुए हैं, दोनों मुकाबले। तो आप बताइए ये क्या असर होगा जिससे ये धरने का इन्होंने नाम रखा हुआ है। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून है 53 अगर है तो उनकी जिंदगी को खतरे की कुछ बात आप मैं यही अर्ज कर रहा हूँ साफ साफ बताया ना, उनकी जिंदगी को खतरा है क्योंकि उनके ये 8वें खाने में सितारों का इज्तिमा है। जब 8वें खाने में सितारों का इज्तिमा हो तो माली तौर पर नुकसान होता है, अनजाना खौफ तारी रहता है। जैसे मोहतरम मौलाना हैं, मजहबी लोग हैं, उनको अनजाना खौफ क्या होगा, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले लोग हैं ये, या फिर ज़िंदगी को ख़तरा होता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं 8वें खाने में प्लैनेट का इज्तिमा हो तो हम बताते हैं। रिसेंटली उनके जमात पे हो चुके हैं ना जी, खुदकुशी मौलाना गफूर हैदरी पर भी अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी, वो बचे अभी, और अभी चमन में एक उनके साथी जो हैं मौलाना के वो शहीद भी हुए, और मौलाना पर खुद भी। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो यही बात वो कर रहे हैं क्योंकि 8 लेकिन अब इन हालात में तारिक साहब मौलाना जुलूस की क़यादत करते हुए आएंगे, और वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं खुदा ना करे जो दुश्मन है पाकिस्तान के। हाँ बिल्कुल, उनका नहीं 8वें खाने की जिन्होंने बात की है, तो ये मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि 8वें खाने की बात इन्होंने मुझे कहा था कि बेनज़ीर को अप्रोच करो, उसकी ज़िंदगी खतरे में है। अच्छा, ये बेनज़ीर, और यही बात इन्होंने इमरान खान के बारे में मुझे कही, फिर मैंने इमरान खान को कहा, और वो तो जब वो गिरे थे सर जी मैंने वाज़ा किया। और ये जो चौधरी साहब हैं उसी वक्त फैसलाबाद से लाहौर चल पड़े, और इमरान साहब ये कहने लगे कि मैं इतना कंपेन कर चुका हूँ, इतने महीनों से रात दिन कंपेन हो रहा है, कर के अब आखिरी दिन रह गया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं ये छोड़ दूँ। लेकिन प्लैनेट बहुत ख़तरनाक थे। मैंने चौधरी साहब को वाज़ा किया था बेनज़ीर के बारे में, उनके बारे में भी बेनज़ीर के बारे में, बेनज़ीर भुट्टो को तो जो हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह हैं उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान को भी कहा था, इमरान को भी कहा था, और इमरान ने मुझे कहा कि उन्होंने भी मुझे कहा है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ, ये मैंने पहनी हुई है, बस यही मैं कर सकता हूँ। तो मतलब वो तो फिर तकदीर ने उनको बचाया कि वो गिरे और चोट लगी, वो हमले से बच गए। तो वो 8वें खाने की ये 2 तो मुझे याद है इन्होंने मुझे कही थी। एक वाज़ेह है बेनज़ीर के सिलसिले में मुझसे गलती हुई है कि मुझे मोहतरम चौधरी साहब को पहले बता देना चाहिए था। वो मेरा जहन में नहीं बात आई, जब 5-6 दिन रह गए अचानक मेरे जहन में बात आई, मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, मैं चौधरी साहब ये मामला बना पड़ा है। सिर्फ 1 दिन पहले हो गया फिर ये तो बहरहाल नाज़रीन, आपने सितारों की जो ज़बानी आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान पर जो सूरत हाल है, डेफिनेटली जो ग्लोबल सिचुएशन है उसका हम पर इम्पैक्ट होगा। भारत में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है, अफ़गानिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। इससे पहले प्रोफेसर साहब बता चुके हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है, जिस तरह प्लैनेट्स चल रहे हैं, आगे जाकर ये सूरत हाल गंभीर होगी। लेकिन प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक बिल्कुल ये हम दरख्वास्त करेंगे कि वो एक एसेट है पाकिस्तान का, बहुत बड़ी एक जमात है, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, उसको हेड करते हैं। एहतजाज करें, अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करें, लेकिन ये ज़रूर एहतियात करें जो एक सिक्योरिटी के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो एक मौके की तलाश में होंगे और सूरत हाल को ख़राब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तमाम पाकिस्तानियों को अपनी खैरियत में रखे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर ये कहना चाहूँ कि ये जो इल्म है सारा, ये एक सेकुलर इल्म है, और खुदा जो है वो काबिज़ तकदीर है। इस हर चीज़ जो है उसी की कुदरत में है, वो जो चाहे करे। तो हम दुआ गो हैं उससे, मुसलमान होने की हैसियत से, कि अल्लाह ताला हमारे वतन को, हम सब लोगों को बचा के रखे। ये जो हमारी जो गुफ्तगू है, ये एस्ट्रोलॉजी एक प्योरली सेकुलर इल्म है, इसको इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए, इसी एनक से देखा जाए।